Let us now start with bonds and debentures. Can anyone tell me what is bond or what are debentures? I hope we have learned it earlier also. लेकिन एक बारी फिर से बता दो. Bonds are generally related with government, okay, and debentures are being issued by the private companies, right? And bonds are being issued by the government companies. Issuing the bonds and debentures. Why do the government companies issue the bonds? Because this is a sort of debt instrument, right? And whenever a company wants to have some funds for a particular period of time, which they think they would be able to repay again, they can go for debt. Otherwise, if you think that the things are riskier and maybe we want some more money from the people, and in that case, they can completely go for equities. So there are two types of, two types of, you can say, financial instruments which are available, which reflect the type of funds the companies are acquiring, either in the form of debt or in the form of equities. We would be studying both of them and their valuation. So first today, let us start with the valuation of bonds and debentures. In a very simple language, if somebody asks you what are bonds or debentures, they are the debt instruments which are being raised by the government companies. And if they are being raised by the government companies, they are being called as bonds. And in case if they are being issued by the private companies, they are being called as debentures. Otherwise, the features are same. The way by which you borrow the fund and the way by which you repay the funds, the features are same in both the conditions. The only thing which makes them different is what? The government and the private companies. So government is supposed to be risk-free and the private companies are supposed to be more risky as compared to the bonds. But दोनों ही case में, if you look upon, चूंकि हमको ये पता होता है कि जो पैसा आप लोग रेस कर रहे हो, वो आपको कैसे कैसे कब मिलेगा. डेट में यही होता है ना कि if you borrow the money from someone, you know how the money would be coming to me back. In that case, since the certainty is about the money which is going to come to us, makes it lesser risky as compared to the equities. Equities में क्या होगा? कितना dividend company declare करेगी? Nobody knows. किस price पे मैं share को बेच पाऊंगा? मेरा capital gain क्या होगा? Nobody knows. But in the case of bonds or debentures, we know that the company or the government company is promising us to pay this much of interest, and after that interest is being repaid for a particular period of time, the money which the company has borrowed would be repaid to me. समझ में आ गई वाली बात? Is this clear? तो यहाँ पे सर्टेनिटी किस चीज की है? जो कैश फ्लो हमको मिलने वाले, दो कैश फ्लो मिलते हैं इसके अंदर. एक बीच में हमको कुछ पैसा बीच में मिलता है. जैसे मैं किसी को उधार देता हूं तो उसको हम बोलते हैं हमको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है. So there is a special term what we use here when we get the interest in between. And secondly, what we get is the principal amount, basically, जिसको आप एक लेमैन लैंग्वेज में अगर पूछो, डेट को इन्वेस्ट करने वाले को क्या मिलता है वापस? तो प्रिंसिपल मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है. तो सेम चीज यहाँ पे मिलती है, लेकिन इसका नाम अलग है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ऑलराइट. Why the things are certain as compared to equity? Why they are more less risky or they are more safer? Because we know what cash flow are going to be generated from these investments. And furthermore, safer is the government bonds, and then the lesser safe, you can say, are debentures being issued by the private company. That is the only difference. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, उनकी रेपुटेशन देखनी होती है, और गवर्नमेंट कंपनीज पे हम लोग थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं. यहाँ तक चीज समझ में आ गई. तो अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक से टर्म्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ, उनको हम एक एक करके समझेंगे. उनका किस तरीके से कैश फ्लो होता है हम जानने की कोशिश करेंगे. जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका वैल्यू करना एक फाइनेंस के स्टूडेंट को आना चाहिए, और उनका वैल्यू किस बेस पे किया जाता है ये चीज समझ लीजिए. उनका वैल्यू किया जाता है कि जो पैसा हमको भविष्य में मिलेगा वो अगर पता लग जाए तो उनको आसानी से हम लोग वैल्यू कर सकते. I can give you a simple hint. What already you have done in your financial management classes, valuation of your project.
किया है प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन, किसी मशीन को खरीदना है कि नहीं खरीदना, कैपिटल बजटिंग करी है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। बेसिकली मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन में होता है, चाहे वो बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, स्टॉक्स हो या इवन ऑप्शंस हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स चाहे कुछ भी हो, दोनों के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करने वाले हैं उनके बारे में हम लोग सबसे पहले देखें। सबसे पहले आती है और दूसरी चीज आती है मार्केट। Whenever we talk about bonds or debentures, the first very important thing what we need to understand is the face value and its difference with the market price. कोई मुझे बताएगा दोनों में क्या फर्क है? Okay. Okay. और फेस वैल्यू कंपनी जो इश्यू करती है वो डिसाइड। ओके, चलिए ध्यान से देखें। जब भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हम लोग खरीदते हैं, हम लोग इसको दो जगह से खरीद सकते हैं। कंपनी जब इसको इश्यू करती है तब खरीदा जा सकता है, दूसरा हम इसको सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग जनरली बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीदते तो आखिरी तक अपने पास रखते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट पीपल बाय द बॉन्ड्स एंड दे कैन लिक्विडेट इट easily in the secondary market. So there are two things what we need to understand here. Face value is the value at which the interest to be paid is being decided by the company. ये वो बेंचमार्क प्राइस है जिसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर कंपनी आपको ब्याज देने वाली है। ठीक है, मैच्योरिटी पे हम बोलते हैं ना हमको प्रिंसिपल मिलेगा, यहाँ पे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के अंदर हम बोलेंगे हमको मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? फेस वैल्यू मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई? सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, मैंने 10 साल के लिए बॉन्ड खरीदा, 10 साल बाद मैच्योर होगा बॉन्ड, तो मुझे क्या मिलेगा? फेस वैल्यू मिलेगा। चाहे आप लो या मैं लूं, किसी के पास भी बॉन्ड है, मैच्योरिटी पे क्या मिलने वाला है? फेस वैल्यू मिलने वाला है। ये चीज समझ में आ गई? So this is the amount which is the amount which you are going to get at the time of maturity. और इसी को हम बेंचमार्क बना के चलेंगे जब हमको कंपनी कुछ पैसा बीच में कैश फ्लो के रूप में देगी। आप उसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक वर्ड जिसका नाम है कूपन। लेकिन आपको ध्यान रखने के कूपन क्या है? कूपन वो कैश फ्लो है जो आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलेगा, और किसके ऊपर मिलेगा? फेस वैल्यू के ऊपर मिलेगा। मतलब कूपन इज ऑलवेज डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। So whosoever buys the bonds or debentures are going to get the coupons. What is that coupon? That is the amount which is a percentage of cash, means percentage of face value which a person is going to get till the maturity of the bond. It can be paid yearly, it can be paid half yearly, it can be paid quarterly, it can be even paid monthly, depending on the company who is issuing the. तो दो टाइप के कैश फ्लो हमको जनरेट होते हैं जब हम बॉन्ड खरीदते हैं। फर्स्ट इज द कूपन। एवरी रेगुलर इंटरवल यू आर गोइंग टू गेट दिस अमाउंट, एंड हाउ मच इज दिस अमाउंट? परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। एंड एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द डेट यू आर गोइंग टू गेट द लास्ट कूपन एंड द फेस वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट एंड से। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज buy or sell, or whenever we want to liquidate the bond or debenture, we can go in the secondary market and we can do it, right? And the price which we get from the secondary market is called as, it is that price which an investor used to buy the bond in between or sell the bond in between. But whosoever have the bond, चाहे मैंने 1 साल बाद बाजार से बॉन्ड को खरीद लिया, तो बॉन्ड अगर 5 साल का था तो जिसने पहले दिन खरीदा उसके पास 5 साल तक का कैश फ्लो उसके पास आने वाला है, 5 साल बाद उसको पैसे मिलने वाले वापस। और अगर मैंने 1 साल खत्म होने के बाद अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी इच्छा हुई और मैंने बॉन्ड को बाजार से खरीद लिया,
तो मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा? मार्केट प्राइस से। लेकिन मुझे बीच बीच में क्या पैसा मिलेगा? मुझे बीच बीच में मिलेगा कूपन। कितना मिलेगा? परसेंटेज ऑफ face value irrespective of whatever price I am using to buy the bond from the maturity पे क्या मिलेगा? Face value, not the market price. Market price can be lesser than the face value, market price can be equal to the face value, or market price can be even higher than the. वो कब ऐसी सिचुएशन आएगी? वो चीज हमको डिस्कस करना. And what we are studying in this class, we are studying that what should be the market price according to us, and that is what we call it as intrinsic fair value भी कहा जाता है. जैसे फ्यूचर्स में हम लोग ने निकाली थी, वैसे इसके अंदर भी हम लोग हमारे हिसाब से बाजार में बॉन्ड कितने का मिलना चाहिए, वो चीज अगर आपको निकालने को कहा जाए तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. आगे बढ़ो एक कदम और. हर बॉन्ड का एक मैच्योरिटी टाइम होता है, टाइम अंटिल एक्सपायरी. Whosoever buys the bond, बॉन्ड अगर 5 साल का, तो अगर आप 5 साल पहले खरीदोगे तो 5 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी. एक आदमी बाजार से खरीद लेगा, 4 साल बचे तो 4 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी. मतलब बॉन्ड का एक्सपायर होना वो डेट पहले से ही प्री डिसाइडेड रहती है. दैट इज कॉल्ड एज टाइम अंटिल मैच्योरिटी. ये क्या बताता है? ये बताता है कि मुझे पैसा कब तक मिलेगा और कब मेरा वापस जमा किया गया पैसा मुझे मिल सकता है. ये सारी चीजें क्लियर हो गई. तो पहली चीज फेस वैल्यू, दूसरी चीज कूपन, तीसरी चीज मार्केट प्राइस, चौथी चीज जो हमको समझ में आनी चाहिए वो क्या है? टाइम अंटिल. अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. कोई भी इन्वेस्टर अगर होगा तो किसी भी जगह वो इन्वेस्ट करने के पहले क्या बात करेगा? मैं आपके पास आया एक प्रपोजल लेके, सर दिस इज अ प्रोजेक्ट, प्लीज इन्वेस्ट इन माय प्रोजेक्ट. You will talk about return, right? I say I'm going to give you 10% return. What is the next statement? What you're going to pass? So I say I'm going to give you 6% return. Now tell me what is the thing what you're going to talk about? 6% रिटर्न दे रहा हूं, जो भी वैल्यू होगी आपको उस वैल्यू पे कितना मिल रहा है? 6%. ठीक है ना? अब दूसरी चीज क्या पूछोगे? 6% से आप सेटिस्फाइड हो क्या? क्या बोलोगे? अरे पागल हो गया, 6% दे रहा है, बैंक की 6.5 दे रहा है. बोलोगे कि नहीं ये चीज? या मैं तो अपने बिजनेस में लगाऊंगा 25%, मेरे को मेरे बिजनेस से मिल रहा है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन अ बैंक और व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट व्हिच इज गिविंग लेसर देन द बैंक? So next very important thing what you do is, as soon as you got to learn about the returns, you say my return which I am expecting from my investment should be at least this much. How much? Whatever you think can be earned easily without any risk. कम से कम उतना तो चाहिए ना आपको. तो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब भी कोई इंसान चाहे शेयर में इन्वेस्ट करे चाहे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, उसको क्या चीज चाहिए? उसको रिटर्न चाहिए. दूसरा सवाल होता है कितना चाहिए. तो कितना का जवाब कहां से आएगा? जो आपको मिल रहा है उसमें हर जगह इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो फिर फ्री में कर लो इन्वेस्ट, जीरो ले लो. लेकिन आपकी चॉइस क्या होती है? आपकी भी तो कोई चॉइस है बीइंग इन्वेस्टर. नहीं साहब, मेरे को 10% चाहिए तभी मैं आपके पास इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. तो जब भी हम बॉन्ड्स की वैल्यू निकालते हैं, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालते हैं, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आप बीइंग एन इन्वेस्टर कितना रिटर्न आपको चाहिए. ये बात समझ में आई? चाहे मार्केट में कोई भी रेट चल रहा हो, लेकिन आप अपनी एक धारणा बना लेते हैं, दिस इज व्हाट आई वांट. मे बी इफ आई एम अ सेफ इन्वेस्टर, मेरे को ज्यादा रिस्क लेना नहीं आता, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, तो मैं बोलूंगा भैया 6.5 मेरे को बैंक में मिल रहा है, आप 7.5 दिलवा दो, 8 दिलवा दो, 6.5 से ज्यादा दिलवा दो, मैं आपको लगा दूंगा पैसा. यही करोगे ना? तो मार्केट रेट कब काम आता है? जब एक आम धारणा बन जाती है, दिस इज ऑन एन एवरेज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग. सो व्हाट वी से हियर इज, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, व्हाट यू विल से, this is the return what I am expecting out of my investment in the. उसी को बेस बना के हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालते हैं. आपके सामने ये चेयर पड़ी है, कितने की होगी आपकी नजर? कितने में खरीदोगे? चलो ये बताओ. 2000. आप कितने में खरीदोगे?
1000 आप कितने में खरीदोगे? 200 रुपए में. Why the 3 people have given me 3 different answers for the same chair? मैं बोलता हूँ आईसीयू बेड ले लो, अपने घर पे लगा लो आईसीयू बेड. It depends on your utility. Are you getting a point? So in any case, for him it may be 2000, for her it may be 1000 rupees, and for him it is only 200 rupees. वो बोलेगा आप तो ऐसे भी दोगे ना, मेरे पास जगह ही नहीं, मेरे को रखनी है. हर किसी इंसान के लिए हर किसी चीज की कीमत अलग अलग होती है. आपको डे 1 में मैंने बताया था. इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है. हर इंसान की जरूरतें, हर इंसान की एक्सपेक्टेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबकी अलग अलग हो सकती है. तो यहाँ पे आपकी नजर में इसकी कीमत 2000 है और इनकी नजर में इसकी कीमत 200 रुपए. वो इनकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है. इसी तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपकी नजर में वो इन्वेस्टमेंट 10% पे हो सकता है. इनको कम से कम 25 चाहिए, क्योंकि ये रोज 25 कमाते. समझ में आई मेरी बात? तो जब भी हम किसी चीज की वैल्यू करते हैं, हम किससे तुलना करते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन से तुलना करते हैं. और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो ही तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे. ये सिंपल सा लॉजिक है. लेकिन सबसे पहली चीज क्या होगी? मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है. तो जब भी इस टाइप का वैल्यूएशन करने की बात करी जाए, आपको क्या करना होगा? यू हैव टू टॉक अबाउट रिक्वायर्ड रेट ऑफ, दिस कैन बी द मार्केट रिटर्न. अगर स्पेसिफिक नहीं किया गया, किसी को बोला नहीं गया इन्वेस्टर के लिए कि इसको क्या चाहिए, मार्केट रिटर्न दिया होगा, तो आपको कितना चाहिए? कम से कम. समझ गए? अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है. मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जाता हूं, बिना लंबा चीजों को खींचे, ताकि आपको भी लगे कि चीजें आसान होती जा रही है. किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालने के पहले उसका कैश फ्लो नोट करेंगे. तो आई विल गिव यू अ सम, नोट डाउन अ सम, एंड हम उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. लिखो, 1000 रुपी 10% bond, 1000 rupee 10% bond is going to expire after 5 years. This bond is traded in the market at 950 rupees. This bond is traded in the market at 950 rupees. What should an investor do? What should an investor do if his expectations from the investment is 15%? If his expectation from the investment is 15%, right? समझ में आ गया सवाल? अब इस सवाल को कैसे करना है? Just look onto the code. I'll help you out with that. बहुत सिंपल है. इस आधार है 5 years. So the first thing, पहले स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ो, सवाल को पढ़ो. 1000 रुपी 10% बॉन्ड. अब यहाँ पे दो चीजें आपको दे दी. 1000 रुपी मतलब आपको सीधे सीधे दे दिया फेस वैल्यू 1000. कितना परसेंट बॉन्ड? 10% बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एज कूपन. Going to expire after the number of years for which you're going to get the cash flow is 5 years. Is traded in the market at, what is the market price being given to you? 950. And the required rate of return what an investor is expecting is, बहुत सारी चीजें हम इस सवाल के साथ साथ करते जाएंगे और आपको इन डाटा को देख के ही एनालिसिस करते जाना. My intention is not to tell you how to calculate the answer. My intention is try to understand what changes in the figures would lead to what situation. Right? Now, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को करने के पहले इस सवाल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए तो इसका कैश फ्लो क्या मिलने वाला है. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसका कैश फ्लो लिखते हैं.
यहाँ आ जाएगा ईयर 1, 2, 3, 4 एंड you're going to get the returns for 5 years. कितना कितना कैश फ्लो मुझे मिलेगा वो लिख लीजिए 10% ऑफ 1000 रुपीज। कूपन कितना होता है फेस वैल्यू के ऊपर कितना कितना मिल जाएगा 100 100 100 100 100 और आखिरी में फेस वैल्यू वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और बताता हूं, जान लीजिए। कभी कभी कंपनीज आपको फेस वैल्यू के अलावा या तो कुछ ज्यादा या कुछ कम भी दे सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी की स्ट्रेटेजी पे। इफ दे से द बॉन्ड इज मैच्योरिंग एट पार या कुछ भी नहीं लिखा जैसे कि इस सवाल में, तो फेस वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा कूपन के अलावा। इसको बोलते हैं बॉन्ड इज एट पार। But sometimes the company may issue the bonds at premium. Say, इसी सवाल में अगर मैं आपको लिख देता हूं bond is issued at a premium of 5%, इसका क्या मतलब हुआ? आपको यहाँ पे 1000 के अलावा 5% of 1000 redeemed at premium. Issued पे भी आ जाएगा, redemption पे भी आता है। अगर it is redeemed at a premium of 5%, तो यहाँ पे redeemed पे भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं इसका even redeemed at इश्यू वाला आपने पहले पढ़ा था ना, इसको हम लोग रिडीम्पशन कहते हैं, हम लोग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली बार आपने जो पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बॉन्ड्स का वैल्यू, या आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा, आपने वेटेड एवरेज कैपिटल निकाला होगा, उसके अंदर आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड इशू किया। अभी हम किसके एंगल से देख रहे हैं? एक इन्वेस्टर के एंगल से देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए, मैं कितना पा रहा हूँ, डिस्काउंट पे आएगा तो आपको ये कम मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, what things we need to do today, हमको सबसे पहले ये करना होगा कि हमको क्या क्या कैश फ्लो मिलेगा वो। अब आज से 1 साल बाद मुझे 100 रुपीज मिल रहा है। आज अगर वो पैसा मुझे आज ही मिल जाए तो कितना मिलेगा? तो 1 साल बाद मुझे 100 मिल रहा है, तो आज मिलता तो कितना होता? आज मैं बोलूं, मैं आपको बोलता हूं मैं आपको 100 रुपए 1 साल बाद देने वाला हूं, आप बोलो सर आज ही दे दो, तो आज में कितने दूं की बात बराबर हो जाए? इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते क्या? अब इसके लिए आपको एक हिंट देता हूं, बहुत सिंपल, क्लास 8 में पढ़ा था। R is equal to R upon, ये क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद आया? What is 100? The amount which I'm going to get after 1 year. What is P? The amount which I'm investing today. What is R? R upon 100, the rate of interest. What is C? The time until investment, right? So ultimately, आप लोग ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा उसके अंदर अमाउंट को आप कहते थे फ्यूचर वैल्यू। पी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू, जिसको आप प्रिंसिपल कहते थे। बस इसके अलावा क्या बताऊं मैं आपको? समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको क्या करना है, 1 महीने बाद या 1 साल बाद आपको 100 मिल रहा है, वो आज की तारीख में कितना होता? आपको रिटर्न कितना चाहिए? 15%। 1 साल बाद अगर मुझे 100 मिल रहा है, आज मैं इस 100 को पाने के लिए 15% के हिसाब से कितना लगाऊं, ये निकालना है मुझे। So what is P here? Present value. So what should I do? इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। निकाले तो बोलते हैं, निकाला कि नहीं कभी?
So what we need to do, we just need to calculate the present value of all the future cash flows, add them all, and that is the value, nothing else. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक साल बाद आपको 100 मिल रहा है, उसकी वैल्यू आज की तारीख में कितनी होगी? तो what I'm going to do, how much return I need to get? 15%. चलो ठीक है, आज मैं 15% के हिसाब से लगाता हूँ वो पैसा x रुपीस, जो कि एक साल बाद कितना हो जाए 100। क्या केवल मैं x लगा रहा हूँ? नहीं, मेरे को तो ये भी मिल रहा है, तो मैं x2 लगा रहा हूँ, 2 साल बाद मिल रहा है, ये हो गया दूसरे साल का पैसा। x3 भी मिल रहा है, चलो जी x3 कितना होना चाहिए? ये 3, ये 4 और फाइनली ये 1100 है टोटल। इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। ये जो भी वैल्यू आएगी ये क्या कहलाएगी? आपकी बॉन्ड की वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड? इन अ वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज सम ऑफ all the future cash. Sum of what? Present value. What we need to do? Present value को sum करने का है जितने भी future cash flow आपको मिलते हैं। ठीक है? Any doubt, anybody? You need to present value of summation of clear. You have to find out the present value of all the future cash flows and sum them. This is the value of bond. अब इसको 2-3 तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ। सवाल को ईमेल आप सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द कैश फ्लो, t इज इक्वल टू 1 to n। कितने साल का बॉन्ड है? n इयर्स का बॉन्ड है, तो 1 to n ऑल द कैश फ्लो यू हैव टू राइट डाउन। कैश फ्लो इज t1 plus k to the power इसको और ज्यादा इलैबोरेट कर लूं तो कैश फ्लो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है कूपन और दूसरा है फाइनल मैच्योरिटी पे मिलने वाला फेस वैल्यू, जो कि पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। उसको मैं बोलता हूँ टर्मिनल वैल्यू। तो व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई कॉल दिस मैच्योरिटी वाला वैल्यू as terminal value, how can I write? Summation of all the cash flow, coupon, till time being required rate of return plus terminal value upon 1 plus k to the power n. ये लिखने का तरीका है, वही चीज है जो यहाँ पे ये क्या है, 100 ये कूपन कितनी बार मिल रहा है? t is equal to 1 to n, तो यहाँ पे t is equal to 1 to 5 तक मिल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और आखिरी में क्या मिल रहा है? 1000। तो टर्मिनल वैल्यू इज हाउ मच? 1000। 1000 अपॉन किससे डिवाइड किया मैंने? 1.15 टू द पावर 5। द लास्ट ईयर का जो भी कूपन को डिस्काउंट कर रहे हैं वही चीज अपन इसको डिस्काउंट में यूज कर रहे हैं। नीचे लिखने का तरीका कूपन है एंड सी इक्वल टू कहां से कहां तक? n इयर्स तक। n कितना है इस बॉन्ड में? 5 साल है। ये समेशन का निशान मालूम है क्या होता है? अगर मैं लिखूं t इक्वल टू 1 पहले साल तक, n इक्वल टू 1 तो पहले साल तक क्या होगा? ये वाली वैल्यू c1, कूपन 1 को कैसे डिस्काउंट करूंगा? 1 plus 1/5 to the power 1 से। फिर कूपन 2 को क्या करूंगा? 200 आ गया, 1.15 to the power 2 से, वो सेकंड ईयर का मिलता है। फिर थर्ड ईयर, फोर्थ। अगर ये भी समझ नहीं आया, आपको टेबल देखना आता है एन्युटी का? टेबल देखना आता है?
वो भी कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 साल का बॉन्ड है, 25 साल का बॉन्ड है, तो खट 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 कितनी बार कर रहे हैं? उसके लिए एन्युटी का टेबल देखना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एन्युटी क्या होती है समझ लीजिए। When the same cash flow is you going to get at the same regular interval of time, उसको एन्युटी कहते हैं। अगर सेम अमाउंट आपको एक रेगुलर इंटरवल के साथ मिलती जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी। उसको जब भी कूपन मिलता है ज्यादातर वो सेम ही रहता है, अगर डिक्लेयर करें अलग है तो, लेकिन ज्यादातर कूपन क्या रहता है? सेम रहता है। तो बॉन्ड के अंदर जो कैश फ्लो हमको जनरेट होती है वो क्या होती है? कूपन की, वो एन्युटी का रूप ले लेती है। और आखिरी की वैल्यू जो होती है वो टर्मिनल वैल्यू होती है, जिसको कि फेस वैल्यू बोलते हैं, जो कि एट प्रीमियम भी हो सकती है, पार भी हो सकती है, डिस्काउंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर जो लोग टेबल को यूज करके कैलकुलेशन करते हैं, लिख लो। पहली चीज क्या थी? कूपन थी हमारी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फंक्शन। क्या करें हम लोग? टेबल कौन सा देखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फंक्शन का। दो टेबल होते हैं एन्युटी में, एक फ्यूचर वैल्यू का और एक प्रेजेंट वैल्यू का। आप कौन सा देख रहे हो? और यहाँ पे आएगा कौन सा रेट, तो के रेट, एंड कौन सा टाइम, कितने साल का बॉन्ड है? टी। 5 साल तक एन्युटी मिल रही है ना, तो एन्युटी हो जाएगी 5 साल की। किस चीज का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी कर रहे हैं? कूपन का। प्लस आखिरी वैल्यू को हम सीधे डायरेक्टली डिस्काउंट कर रहे हैं, उसमें एन्युटी का तो चक्कर ही। तो आखिरी वैल्यू क्या थी? उसको मैंने बोला टर्मिनल, इसको मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट करूंगा। डिस्काउंट फंक्शन लिख लो या प्रेजेंट वैल्यू लिख लो, एक ही बात होती है। लेकिन किस रेट पे करूंगा? के रेट से आखिरी वाला जो टाइम है वो होगा टी, लास्ट। दोनों में सेम है ना, 5 चल रहा है एन्युटी। समझ गए? तो अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इस सवाल को सॉल्व करना चाहूं तो बहुत सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। कूपन इज हाउ मच? 100। 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फंक्शन। किस रेट से हम लोग रिटर्न चाहते हैं? हमारा 3%। तो यहाँ देखो 3%। कितने साल तक कूपन मिल रहा है? 5 साल तक मिल रहा है। तो दिस बिकम्स 5 प्लस टर्मिनल वैल्यू क्या है? 1000। मैं चुनेंगे पार, कुछ भी नहीं दिया तो पार। इसका डिस्काउंट फंक्शन क्या होगा? इसका प्रेजेंट से एक बात है, 15% एंड 5। What we need to do is we need to use calculators, या आप टेबल देखिए और टेबल में से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए टेबल है, टेबल आपके पास, नेट पे खोलिए। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फंक्शन, तो बुक लाया ना, सुबह घूम रहा था बुक लेके, खोल, उसके पीछे टेबल दिया। आज बुक ही यूज नहीं करा, कमाल नहीं करती। लास्ट में क्लास में दिया टेबल, तो क्या हो गया? तो टेबल तो देखना बाबू, दिया है कि नहीं दिया। क्या बोल रहे हैं? वी आर टीच, ये रहा टेबल देखिए आपको। इसमें एन्युटी फंक्शन देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया सीधे। ये तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शंस का है, बस इतना ही दिया। क्या कर सकते ना आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। बिल्कुल आप ये लिखा, आपको कैसे भी इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर ले जा सकते हो, आप सॉल्व करिए। इंटू इंटू करके इक्वल टू कर सकते। 100 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो आंसर आ जाएगा। फिर आखिरी वाले को क्या करोगे आप? या तो 1100 ले लो, लेकिन आपको अलग से करना, या तो 1000 लेके 1/1, कैसे भी। अरे टेबल दिए बहुत सारे, इमेजेस में चली जाए। लिख 100 डिवाइडेड बाय 1. 2 बार डिवाइड कर दो था ना, 1.15 इक्वल टू
लिख दीजिए वैल्यू, पहले इक्वल टू, पहला इक्वल टू, देखो क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 1, कितना 100 डिवाइडेड बाय 1.15, हाँ, इक्वल टू इक्वल टू फ्रिक्शन होगा, इक्वल टू फ्रिक्शन होगा, इक्वल टू फ्रिक्शन होगा, ये हो गया प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1.15, 1000 लिखो डिवाइडेड बाय 1.15 डिवाइडेड, नहीं ये नहीं करना, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1, टेबल है आपके पास, खोलो, PVIAF, आप जब तक ये करो 1000 डिवाइडेड बाय 1.15, फिर से डिवाइडेड बाय 1.15, फिर से डिवाइडेड बाय 1.15, 5. This is the formula for all the people who want to use it. कितना आंसर आ रहा है, पहले ये निकाल दो, फिर अपन क्रॉस चेक करेंगे टेबल, चलो 1/1.15 चलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है ना, बस देखो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जैसे भी निकालना है निकालो, अरे फिर मेरी तरीके से बता दो, सामने वाला बोलेगा क्या करा, अब आपकी फ्लाइट छूट गई तो मैं क्या करूँ, याद से ध्यान से समझ लो, मैं तो आपको 8वीं क्लास के बच्चों के जैसा समझाया, बताओ आंसर क्या आ रहा है, बेटा जब 20 साल का बॉन्ड है तो मैंने ये नहीं पूछा किसके घर से, अब जिसको टेबल देखना नहीं आता, मैं टेबल देखना सिखाऊं कि आता है, खोलो PVIAF का टेबल दिखाओ मुझे, PVIAF दिख गया, सब ठीक नहीं है, क्या हुआ, ऑल वेल, लड़के वाला PVIAF 3% in 5 years, बताओ टेबल दिखाओ,
सर हमारे 3.55